Transfer of Property Act संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम. Topics. 1. Things attached to the earth. 2. Notice. Mains question answers with case laws in Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में केस लॉ के साथ प्रारंभिक और मुख्य प्रश्न उत्तर. Q. Write note on things attached to the earth. Things attached to earth has been defined in Section 3 of the Act. It means 1. Things embedded in earth. 2. Things attached to what is so embedded in earth. And 3. Things rooted in earth. Things embedded in the earth. Things embedded in the earth means the things which are fixed firmly in the earth, and as such become part of the land. It is a thing whose foundation is laid beneath the normal surface of the earth. For example, buildings, houses, walls, or electricity poles, etc., are immovable properties because they are things embedded in the earth. Things attached to what is so embedded in the earth. Where a thing is attached to something which is embedded in the earth for its permanent beneficial enjoyment, the things so attached also become immovable property. For example, doors, windows, or shutters of a house are attached to its walls for the permanent enjoyment of that house and are regarded as immovable properties. पृथ्वी से जुड़ी वस्तुओं पर टिप्पणी लिखिए. अधिनियम की धारा 3 में पृथ्वी से जुड़ी चीजों को परिभाषित किया गया है. इसका अर्थ है 1. धरती में समाई हुई वस्तुएं. 2. जो चीजें धरती में समाई हुई हैं उससे जुड़ी हुई हैं. और 3. धरती में जड़ जमाई हुई चीजें हैं. धरती में समाई हुई चीजें. धरती में समाई हुई चीजों का मतलब है वे चीजें जो जमीन में मजबूती से जमी होती हैं और इस तरह भूमि का हिस्सा बन जाती हैं. यह एक ऐसी चीज है जिसकी नींव पृथ्वी की सामान्य सतह के नीचे रखी जाती है. उदाहरण के लिए इमारतें, घर, दीवारें या बिजली के खंभे आदि अचल संपत्ति हैं क्योंकि वे धरती में समाई हुई चीजें हैं. जो वस्तु पृथ्वी में अंतर्निहित है उससे जुड़ी हुई चीजें. जहां कोई वस्तु किसी ऐसी चीज से जुड़ी होती है जो उसके स्थायी लाभकारी आनंद के लिए पृथ्वी में अंतर्निहित होती है, वहां इस प्रकार जुड़ी हुई वस्तु भी अचल संपत्ति बन जाती है. उदाहरण के लिए किसी घर के दरवाजे, खिड़कियां या शटर उस घर के स्थायी आनंद के लिए उसकी दीवारों से जुड़े होते हैं और उन्हें अचल संपत्ति माना जाता है. Things rooted in the earth. Trees, plants, or shrubs which grow on the land are rooted in the earth. In Suresh Chandrava Kundan, 2001, Supreme Court held that standing trees being rooted in earth are part of the land, and when there is transfer of property in land, the interest in the property would also include anything attached to the land agreed to be sold, unless there is an intention, express or implied, to the contrary. As a general rule, all the trees, plants, herbs, and shrubs are immovable properties except A. Standing timber, B. Growing crops, C. Growing grass. धरती में जड़ें जमाने वाली चीजें, जमीन पर उगने वाले पेड़, पौधे या झाड़ियां धरती में जड़ें जमाती हैं. सुरेश चंद्र बनाम कुंदन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धरती में जड़ें जमाए खड़े पेड़ भूमि का हिस्सा हैं और जब भूमि में संपत्ति का हस्तांतरण होता है तो संपत्ति में हित में भूमि से जुड़ी वह सब कुछ भी शामिल होगा जिसके लिए सहमति व्यक्त की गई है. बेचा गया जब तक कि इसके विपरीत कोई अभिव्यक्त या निहित इरादा न हो. एक सामान्य नियम के रूप में सभी पेड़, पौधे, जड़ी बूटियां और झाड़ियां अचल संपत्ति हैं सिवाय इसके ए. खड़ी लकड़ी, बी. बढ़ती फसलें, सी. बढ़ती घास. The major question to be determined is how to ascertain whether any movable property attached to earth or permanently fastened to anything so attached has become immovable property. Indian courts often take help of English cases to decide the question of fixation. In order to determine this, following two tests are applied. 1. Degree or mode of annexation test. This test provides that if the movable property is lying on the surface on its own weight, then the presumption is that it is movable property unless contrary is proved. In Wake v. Halt, 1883, the court held that where the chattel is so annexed that it cannot be removed without great damage to the land, it affords a strong ground for thinking that it was intended to be annexed in perpetuity to the land. If such movable property is fixed on the ground or goes deeper in the ground, then the presumption is that it is immovable property, and it is part of the land or ground unless contrary intention appears. For example, if a chair is resting on the ground,
then it is movable property. But if such chair is tied up or fixed on the ground, like chairs of theater, then it becomes immovable property. मुख्य प्रश्न यह निर्धारित करना है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जमीन से जुड़ी कोई चल संपत्ति या इस प्रकार जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई संपत्ति अचल संपत्ति बन गई है। निर्धारण के प्रश्न का निर्णय करने के लिए भारतीय अदालतें अक्सर अंग्रेजी मामलों की मदद लेती हैं। इसे निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 2 परीक्षण लागू किए जाते हैं। 1. अनुबंध परीक्षण की डिग्री या मोड़। यह परीक्षण प्रदान करता है कि यदि चल संपत्ति अपने वजन पर सतह पर पड़ी है तो अनुमान है कि यह चल संपत्ति है, जब तक कि इसके विपरीत न हो साबित हुआ। वेक बनाम हॉल्ट 1883 में अदालत ने माना कि जहां संपत्ति इस तरह से जुड़ी हुई है कि इसे भूमि को भारी नुकसान पहुंचाए बिना हटाया नहीं जा सकता है, यह सोचने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है कि इसका इरादा हमेशा के लिए भूमि पर कब्जा करने का था। यदि ऐसी चल संपत्ति जमीन पर स्थिर है या जमीन में गहराई तक चली गई है तो यह धारणा है कि यह अचल संपत्ति है और यह भूमि या जमीन का हिस्सा है, जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई कुर्सी जमीन पर टिकी हुई है तो वह चल संपत्ति है, लेकिन यदि ऐसी कुर्सी जमीन पर बंधी या टिकी हुई है थिएटर की कुर्सियों की तरह, तो वह अचल संपत्ति बन जाती है। 2. Object or purpose of annexation test. In this test, it is to be seen whether the purpose was to enjoy the movable property for the time being or to permanently benefit another immovable property. If it is for permanent beneficial enjoyment of immovable property, then whatever is attached to it becomes immovable property. For example, electrical wiring, window panels, etc., are annexed for permanent beneficial enjoyment of immovable property. Therefore, it all depends on the intention of the parties. If the intention is to make movable property part of immovable property, it will become part of immovable property and will be treated as immovable property. It will then shed its character as movable property. Supreme Court in Duncan's Industries Limited vs. State of Uttar Pradesh, 2000, held that whether a machinery embedded in the earth can be treated as movable property or immovable property depends upon the intention of the parties. 2. विलय परीक्षण का उद्देश्य या उद्देश्य। इस परीक्षण में यह देखा जाता है कि उद्देश्य चल संपत्ति का कुछ समय के लिए उपभोग करना था या किसी अन्य अचल संपत्ति को स्थायी रूप से लाभ पहुंचाना था। यदि यह अचल संपत्ति के स्थायी लाभकारी उपभोग के लिए है तो जो कुछ भी इससे जुड़ा है वह अचल संपत्ति बन जाता है। उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति के स्थायी लाभकारी उपभोग के लिए बिजली के तार, खिड़की के पैनल आदि संलग्न किए जाते हैं। इसलिए यह सब पार्टियों की मंशा पर निर्भर करता है। यदि चल संपत्ति को अचल संपत्ति का हिस्सा बनाने का इरादा है तो यह अचल संपत्ति का हिस्सा बन जाएगी और अचल संपत्ति के रूप में मानी जाएगी। इसके बाद यह चल संपत्ति के रूप में अपना चरित्र त्याग देगी। डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य 2000 ने माना कि धरती में समाई मशीनरी को चल संपत्ति माना जा सकता है या अचल संपत्ति। यह पार्टियों की मंशा पर निर्भर करता है। Q. What is a notice? Discuss actual notice and constructive notice. Notice simply means knowledge or information of a fact. If a person has notice of some fact or transaction, the knowledge of that fact is binding on him. Section 3 defines the expression notice. It provides that a person is said to have notice of a fact. A. When he actually knows that fact. Or B. When but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence, he would known it. Actual notice. Actual notice means direct or express knowledge of a fact. It means the person actually knows the fact. Such knowledge of facts must be definite and not hearsay. Only knowledge of the parties interested in the transaction is actual notice. Knowledge to a person who is stranger to the transaction is no notice. Knowledge of a fact must be of such a nature that it is expected of a reasonable man that he takes it seriously and would act upon the information and regulate his conduct by it. नोटिस क्या है? वास्तविक सूचना और रचनात्मक सूचना पर चर्चा करें। नोटिस का सीधा सा मतलब है किसी तथ्य का ज्ञान या जानकारी।
यदि किसी व्यक्ति को किसी तथ्य या लेन देन की सूचना है तो उस तथ्य की जानकारी उस पर बाध्यकारी है। धारा 3 अभिव्यक्ति नोटिस को परिभाषित करती है। यह प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना होना कहा जाता है। ए, जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, या बी, जब जानबूझकर किसी पूछताछ या खोज से परहेज करना जो उसे करना चाहिए था, या घोर लापरवाही, तो उसे यह पता होगा। वास्तविक सूचना का अर्थ है किसी तथ्य का प्रत्यक्ष या व्यक्त ज्ञान। इसका मतलब है कि व्यक्ति वास्तव में तथ्य जानता है। तथ्यों का ऐसा ज्ञान निश्चित होना चाहिए, न कि अफवाह। केवल लेन देन में रुचि रखने वाले पक्षों का ज्ञान ही वास्तविक सूचना है। लेन देन से अनजान व्यक्ति के लिए ज्ञान कोई नोटिस नहीं है। किसी तथ्य का ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए कि एक उचित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इसे गंभीरता से लेगा और जानकारी पर कार्रवाई करेगा और इसके द्वारा आचरण को नियंत्रित करेगा। Constructive notice. Doctrine of constructive notice is based on equity. Equity treats a man who ought to have known a fact as if he actually does know the fact, where a person actually does not know about a fact, but the court treats that under the circumstances, he must be deemed to have knowledge of that fact. The notice is constructive. Therefore, constructive notice is legally imputed notice. Legal presumptions with respect to constructive notice following are the legal presumptions raised in constructive notice. 1. Willful abstention from an inquiry or search. It means deliberately avoiding notice of the fact which a reasonable man would take under normal course. Such abstentions are conscious and deliberate. Willful abstention from inquiry or search means such abstention as would show lack of bona fides. For example, if a person refuses to accept the registered post, correctly addressed, then the law presumes that he knew the contents of the letter. रचनात्मक सूचना का सिद्धांत समानता पर आधारित है। जिस व्यक्ति को कोई तथ्य जानना चाहिए, उसके साथ समानता का व्यवहार इस प्रकार किया जाता है जैसे कि वह वास्तव में तथ्य जानता हो। जहां कोई व्यक्ति वास्तव में किसी तथ्य के बारे में नहीं जानता है, लेकिन अदालत यह मानती है कि परिस्थितियों के तहत उसे उस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए, नोटिस रचनात्मक है। इसलिए रचनात्मक नोटिस कानूनी तौर पर आरोपित नोटिस है। रचनात्मक सूचना के संबंध में कानूनी धारणाएं रचनात्मक नोटिस में उठाए गए कानूनी अनुमान निम्नलिखित हैं। 1. जानबूझकर किसी पूछताछ या तलाशी से परहेज करना। इसका अर्थ है जानबूझकर उस तथ्य की सूचना से बचना जिसे एक उचित व्यक्ति सामान्य तरीके से अपनाता है। इस तरह की परहेज सचेतन और जानबूझकर की जाती है। पूछताछ या खोज से जानबूझकर परहेज करने का अर्थ है ऐसा परहेज करना जो प्रामाणिकता की कमी को दर्शाता हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सही ढंग से संबोधित पंजीकृत डाक को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, तो कानून यह मान लेता है कि उसे पत्र की सामग्री पता थी। इस प्रकार की धारणा तब उत्पन्न होती है जब परहेज करने वाले व्यक्ति के पास किसी तथ्य को जानने का साधन होता है, लेकिन उसने जानबूझकर इस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी तथ्य को जानने का कोई साधन नहीं है, तो उस पर रचनात्मक सूचना नहीं थोपी जा सकती। 2. Gross negligence. Negligence is omission to do something which a reasonable man would do. It means a higher degree of negligence. Doctrine of constructive notice applies when a person, but for his gross negligence, would have known the fact. 3. Registration as notice. Explanation 1, added by Amending Act of 1929, provides that registration of an instrument is notice of all the facts stated in that instrument. This explanation was added by way of Amendment Act of 1929. Registration amounts to notice in the following circumstances. A. Registration is notice with respect to those documents which are compulsorily registerable. For those documents in which the registration is optional, there is no constructive notice. B. Registration amount to notice only when all formalities are complied with. C. Registration is notice only for subsequent transferee. 2. घोर लापरवाही। लापरवाही कुछ ऐसा करने में चूक है जो एक उचित व्यक्ति करेगा। इसका मतलब है उच्च स्तर की लापरवाही। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति अपनी घोर लापरवाही के बावजूद इस तथ्य को जानता होगा। 3. नोटिस के रूप में पंजीकरण। 1929 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण आय में यह प्रावधान है
कि किसी उपकरण का पंजीकरण उस उपकरण में बताए गए सभी तथ्यों की सूचना है। यह स्पष्टीकरण 1929 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। पंजीकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ध्यान देने योग्य है। ए, पंजीकरण उन दस्तावेजों के संबंध में सूचना है जो अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य हैं। उन दस्तावेजों के लिए जिनमें पंजीकरण वैकल्पिक है, कोई रचनात्मक सूचना नहीं है। बी, पंजीकरण राशि तभी नोटिस की जाएगी जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं के साथ अनुपालन। सी, पंजीकरण केवल बाद के हस्तांतरणकर्ता के लिए नोटिस है। 4. Actual possession as notice. Explanation ill, added by Amending Act of 1929, provides that any person acquiring any immovable property shall be deemed to have notice of the title of actual possessor thereof. In National Ban of Australia, U. Paul Hamilton, AIR 1920 PC 274 court held that it has always been held that actual possession is in itself notice of the title under which such possession is retained, which anyone dealing with the property cannot, without risk, ignore. 5. Notice to agent is notice to principal. Explanation ill, added by Amending Act of 1929, relates to notice to an agent known as imputed notice, which amounts to constructive notice to his principal. It is also called imputed notice. Agent acts on behalf of his principal. He represents the principal in dealing with third parties. It is also based on the maxim qui facit per alium facit per se, that is, he who acts through others is deemed to act in person. 4. नोटिस के रूप में वास्तविक कब्जा। 1929 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि किसी भी अचल संपत्ति को प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके वास्तविक मालिक के शीर्षक का नोटिस माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल बैन यू पॉल हैमिल्टन AIR 1920 PC 274 में अदालत ने माना कि यह हमेशा माना गया है कि वास्तविक कब्जा अपने आप में शीर्षक की सूचना है, जिसके तहत ऐसा कब्जा बरकरार रखा जाता है जिसे संपत्ति से निपटने वाला कोई भी व्यक्ति जोखिम के बिना अनदेखा नहीं कर सकता है। 5. एजेंट को नोटिस प्रिंसिपल को नोटिस है। 1929 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया स्पष्टीकरण 3 एक एजेंट को नोटिस, जिसे आरोपित नोटिस के रूप में जाना जाता है, से संबंधित है, जो उसके प्रिंसिपल को रचनात्मक नोटिस के समान है। इसे आरोपित नोटिस भी कहा जाता है। एजेंट अपने प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है। वह तीसरे पक्षों से निपटने में प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस कहावत पर भी आधारित है कि क्वी फैसिट प्रति एलियम फैसिट पर से, अर्थात जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है उसे व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाला माना जाता है। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और इसे उपयोगी या मनोरंजक पाया तो इसे अंगूठा देकर और नीचे दिए गए सदस्यता बटन को दबाकर अपना समर्थन दिखाना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और यह हमें और अधिक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको पसंद आएगी। सूचनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चूकें।